Hello everyone, in our last class we completed the if-else statement. We had seen several examples of the if-had statements and we had seen several possibilities of it. You try yourself, practice as much as you can. Today we will start with for statement. So let us see what is a for statement and what does it do. So here we have for statement. So consider a scenario. Suppose I have I have a string. I have a string that is, or I can take my name as a string. So you can take. So suppose I have a string shakti. So I have this string which is surrounded by quotes. Okay. Or if people I try to. So I have a string that is my name which is surrounded by quotes. That means it is a value basically. Okay, it is a string. Doesn't matter whether it is a value or whether it is a variable, doesn't matter. Yeah, it is a string. So when I try to print this string, so if I try to print this string like print, then I have to pass this string as an argument to the print function. If I want to print this string, then I have to pass this string as an argument to the print function, and on the output window I have the output shakti. Okay. Now consider the scenario that I want the output like this. Instead of the entire name, like I want the output like this: shakti. So I want the output like this, that is each character of this string in a separate line. This string basically had 6 characters, shakti, 6 characters, and I want basically each character itself is a string. Okay, so this string is basically a combination of characters, and character is nothing but a string. Okay, so I want to print like this, and each character I want to print like this, or each character is basically a string. So then what can I do? I want to print each character of this string in a separate line. So what can I do in this case? Okay. So for that purpose, we basically need for statement. Okay. Let us see how it works. So I write like this for, and then I can take any variable to contain the string, okay, to contain these individual strings. So basically this Shakti has these individual strings, HSAKTI, individual characters, or I can say that this string has basically these individual strings, okay. So I can take a variable to store these strings, okay, any variable I can take, doesn't matter what variable I choose. I can take suppose x as a variable, then I take 4x in, and I will use 4x in Shakti, and then I will use here print. Here I will use a colon at the end, and then I will use print x. So basically this is my program only. Okay, this is my program, only 2 lines of program. For x in Shakti, print x. When I will do this, these 2 lines, only these 2 lines in my program, and if I try to run my program, so this will be the output, shakti. Okay, you try that, write these 2 lines in a program, run those lines, the output will be like this, shakti. Okay, yeah. So how it is working, let's try to understand that's how it is working basically. Here x is a variable, you can choose any other variable, doesn't matter, we have seen that you can choose any other variable, like I can also use y here, instead of x I can use y here. So again the output will be same because it is a variable and you can choose any variable name.
And I can also choose any other variable, like I can also choose name like NBF here. Okay, like NBF here. So again the output will be same. So for NBF in Shakti, print NBF, so the output will be same. So I can choose any variable name. But again the same thing is this, you can choose any variable name, but you should always choose meaningful variable names. You can take any variable name, but you should always take meaningful variable names. NBF in this case does not make any sense. So what should I take then? I can take X, I can take Y, basically they can contain any type of value. X can contain any type of value, Y can contain any type of value, I can take any one of them, okay. But yeah, I should use basically meaningful variable names. And when I say that basically a string is a combination of characters, so in short I can use CH here, which represents basically a character. So in short I can use CH here, which basically CH basically stands for character. In short I am using CH, okay. C and H. Yeah. So the output will be same, SHAKTI. Okay. Output will again be same, but here my variable name which is basically CH. So my variable basically the name, sir, video is not clear. Video is not clear, that should not be the case. Everyone is facing the issue. Please let me know, ping quickly, yes sir, clear or not clear. Okay, write this, clear or not clear. Please reply quickly. A, please reply. इतना टाइम क्यों लगाते हो? Not clear. Meenal is also saying that video is not clear. Sir, video is clear. Okay, Ishika is saying that video is clear. That means video should be clear. Okay. Any more inputs? Video should be clear because it is looking okay. Clear hai. Okay, so few people are reporting that video is clear. Okay, yeah. So definitely issue is not from our side, issue is not from my side. Okay, do not worry, video will be uploaded, you can go through the video. Okay, if there is an issue then you can go through the videos. Okay, so problem is from your side. Okay, yeah. So I can take any meaningful variable name. So CH basically stands for character. CH is basically what I can say. In short, I can write CH as I said in place of character. So because I am saying that as a string is a combination of characters, basically a string is a combination of characters, so I can take CH to represent individual characters. ठीक है? अब यहाँ देखो CH क्या है, जो CH है वो इसके individual characters के लिए store करता है. देखो कैसे काम करता है. Let us see, try to understand that how it works exactly. Okay, you can forget this line. Yeah, so basically how does it work? Okay, so let's try, let me write it here. For CH in check. Okay, and here we have a colon, and in the next line I write print CH. So let me see that how does it work. Okay, so basically when I run this statement, the internally what happens, so we are trying to understand that how this basically works internally, what happens. Okay, so what happens internally is that when this basically, this is known as loop basically. Okay, so when this run exactly, what happens, first CH becomes equal to S, first CH becomes equal to X, then it prints CH, and then after CH become equal to H, and then it print CH again, and again CH becomes equal to A, and then it print CH again, and then again CH becomes equal to K, and then it print CH again, and goes on up to the I. Okay, and it goes on up to the I. So you can say that basically these two statements works internally like this. Okay, so these two statements work internally like this. So the variable we have taken CH is basically now becomes CH is equal to X, and then it prints CH. So now you can see we have an output
S. And here we have CH is equal to H. So after S we have H, so CH becomes equal to H and then it prints CH. So basically this is now H. Now CH basically becomes A, फिर क्या होता है आपका प्रिंट करता है फिर दोबारा से CH से, तो ये होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली वर्क्स इन दिस वे. So first, so you can understand like this. So this is my Shakti. So this is my string basically. So first CH becomes equal to S and then CH becomes equal to A, then CH, or you can see first, so a variable basically, a variable CH is created. You can think like this, okay. A variable CH is created and now it contains a value S. And then it prints the value. And after that CH contains the value H and then it prints that value. And after that CH contains a value A, then it prints the value again and again, so it goes like that. तो आपका होता क्या है, देखो होता क्या है कि CH मेरे पास एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, ठीक है। CH मेरे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं, होता क्या है कि CH में पहले हम S डाल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर CH में हम S डाल देते हैं फर्स्ट कैरेक्टर और फिर उसको प्रिंट करवा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर CH में हम H डाल देते हैं और फिर जो है प्रिंट करवा देते हैं, फिर CH में हम A डाल देते हैं और फिर प्रिंट करवा देते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा चलता है। तो इस तरह से जो है आपका आउटपुट है SHA KTI चल आ जाता है, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर लेते हैं, SHA KTI एक एक कैरेक्टर लेते हैं और वो CH में एक वेरिएबल जो हमने लिया था CH, उसमें वो डालते चले जाते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह से आउटपुट आ जाता है, ठीक। तो हमारा CH क्या है, पहले S था फिर H था, फिर आपका A हो जाएगा उसमें वैल्यू, फिर CH में वैल्यू K हो जाती है, फिर CH में वैल्यू T हो जाती है और फिर CH में वैल्यू लास्ट में आपकी I हो जाती है। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल द आइडिया इज वी टेक अ वेरिएबल CH एंड वी असाइन individual values to CH like S, H, A, K, T, I and we try to print them, okay, and we print them individually, ठीक है। तो इस तरह से होता है, एक वेरिएबल CH ले लेते हैं, उसमें पहले S डालते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर उसमें H वैल्यू डालते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर A वैल्यू डालते हैं, फिर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनली इट वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। ये सब कुछ इंटरनली होता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा करते हैं तो आउटपुट जो है ऐसा आता है और इस तरह से चीजें होती है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट देन आई विल रब इट और आई प्रोबेबली assume that you are basically writing with me, okay. So I assume that whenever I write here you are also basically supposed to write that. So I probably assume that जब भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहते हो, एक कॉपी पेन लेकर बैठते हो और साथ साथ में जो है नोट डाउन करते चले जाते हो, ठीक है। तो ये मैं एज्यूम करता हूँ आपको और आपको ऐसा करना ही चाहिए ना शुरू से, ठीक है। फटाफट इसको कर लो कंप्लीट और फिर आगे चलते हैं। चलो, तो ये इस तरह से जो है बेसिकली नाउ इट वर्क्स लाइक दिस इंटरनली। So I can also take a variable like this, okay. अब मैं क्या करता हूँ, देखो शक्ति की जगह मैं एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, देखो इस तरह से ना। So आप क्या करो कि एक प्रोग्राम बनाओ। क्या प्रोग्राम बनाना है आपको, एक प्रोग्राम बनाना है। बेसिकली you are now supposed to write a program. So it basically asks a number or basically asks a string your name as an input, okay. So write a program that asks a name from the user. So I can take like this name, any variable I can take, but I will choose name and then I will write input and here enter any name, enter any name, okay. And on the next line I can write for name or for ch in name, and here I will use a semicolon and then I will print ch, okay. So basically what happens on the output window, first a message appears that is enter any name, on the output window first a message is printed that enter any name, and now suppose I enter my name like SHA KTI, okay. Suppose I enter my name here SHA KTI and then, so this is the input I have given
So basically now I have given a variable, I have given the name Shakti. So the value of name, now the value of name will become SHA. Now the value of the variable name becomes SHA KTI and that is with quotes. Okay. So name आपके पास एक वेरिएबल हो जाएगा, उसकी वैल्यू SHA KTI हो जाएगी कोट्स के साथ में, ठीक है. अब देखो क्या होता है. So basically here also I can use instead of basically directly value I can also have, so instead of a string constant I can also use a string variable, है ना. यहाँ पर शक्ति की जगह डायरेक्टली मैंने डायरेक्टली शक्ति ना यूज करके एक नेम ले लिया और नेम में जो वैल्यू है वो वही शक्ति है, ठीक है. तो इस तरह से है ना, सेम ही चीज है, दोनों ऐसे ही कर सकते हैं. जहां पर भी आप जो है कांस्टेंट यूज कर रहे हो वहां पर आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो. ओके, सो इट डजंट मैटर. So basically now your output will be like that, SHA KTI. Okay, yeah, not output, that is input. So output will be like S H A and then K T and I. So this will be your output, SHA KTI. Okay. Yeah. So this is a program that basically ask any name from the user. So this program, what does this do? Basically it takes a name from the user. Suppose a user enters Shakti, so it basically prints every character of that name in a separate line. Okay, so it basically prints every character of a string in a separate line. ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर उसको string दी उसका इसने हर character को एक एक अलग line में print कर दिया. So this was the program. Note it down, take. Okay, आपको ये क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाकर देखना है प्रोग्राम. ओके, whether it is working as I am doing here, है ना, ऐसे ही बनाकर देखना है, ठीक है. Now the next thing what we should hear, suppose if I want an output like this, suppose if I want an output like this, triple S, triple H, triple A, triple K, triple T and triple I. So what should I do here? Or I can suggest you that something I will change here. Okay, so something I will change here. Here I will write something and my output will come like this. I want you from you, I want answers from you. आप में से कौन है जो ये आंसर कर सकता है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि मेरा आउटपुट ही आएगा. इनपुट अभी भी वही है, इनपुट इज सेम. I have given the input Shakti and but now I want my output like this. So I want answers from you that what should I write here in this place, what should I write so that my output will come like this. Any reply quickly, quick answers I want from you. Okay, just reply me quickly that what should I write here so that my output will come like this. No reply from anyone, yes or no? कौन है जो फटाफट से रिप्लाई करेगा, बताओ फटाफट से. किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं है यहाँ पर. क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड. दिस इज अर्शिता, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम रियली. CH multiplied by 3, that's awesome. Great Arshita. That's really great because the same problem we were discussing in our 11th CBSE, but no one was able to answer. Even the intelligent students, which I assume that these are intelligent students, but even they could not answer. Okay. छोटी सी चीज है, हम सब कर ही चुके हैं ये सब चीजें ना, लेकिन आप में से कोई भी जो 11th में आज सुबह लेक्चर लिया था किसी ने भी रिप्लाई नहीं करा, जबकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे ना वहां पर उनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने भी रिप्लाई नहीं करा. इट्स वेरी गुड अर्शिता, अब वास्तव में काबिल तारीफ है कि आपने ये रिप्लाई करा. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली हम ये चीज देख ही चुके हैं ना, क्योंकि CH क्या है, CH का आप एक स्ट्रिंग है ना अलग अलग. जैसे सपोज मैंने लिया CHS है ना, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, जब भी मैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आउटपुट क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, ये ऐड हो जाता है ना. उतने ही टाइम्स जो है स्ट्रिंग अपने आप में ऐड हो जाती है एक के बाद एक. ठीक है, या तो CH क्या है, CH आपका यही तो है, SHAKTI, ये क्या है, सब स्ट्रिंग्स ही तो है. यही तो हमने बोला ना पहले कि जो CH है वो CH क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है. अभी हमने देखा पूरा एक्सप्लेन करा, CH की वैल्यू क्या क्या थी, S थी, H थी, A थी, KT थी, I थी, ये सारी CH की वैल्यूज थी, वो सब क्या थी, स्ट्रिंग ही थी. और whenever I multiply a string by 3, that means the output will be SSS.
Okay, so yeah, so I will get the output like this. Great. So now suppose if I try to write something like this, CH plus 3. So what will happen? So suppose if I write CH plus 3, now let me reply. Yeah, now let me have your answers. So if I write CH plus 3, what will be the answer? If I write CH plus 3, what will be the answer? Let's reply quickly. If I write CH plus 3 here, so what will be the answer? Quickly. Yeah, okay. So the answer will be basically it's an error. Yes, very good. Great. That's awesome. Okay, yeah. So I will have an error basically here. बहुत सही है ना. ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला होता है तो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है. ठीक है, हाँ यहाँ पर एरर आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग में एक इंटीजर ऐड करते हो तो एक एरर आती है ना. बिकॉज इफ आई ट्राई टू राइट दिस s plus 3 दैट बेसिकली इज एरर. क्योंकि यू कैन नॉट डू लाइक दिस. आप एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर ऐड नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन ऐड नहीं कर सकते ना. वी हैव सीन दीज ऑपरेशंस. ठीक है, चलो. So this all done and more things here. Yeah, suppose now if I want to add, so suppose if I want to add this exclamation mark. ठीक है, exclamation mark, then what should I do? In the same thing I want to add exclamation marks, then what should I do? So what should I write here in that case? So ट्रिपल एस एंड देन एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एक ट्रिपल एस होगा फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू? यस, वेरी गुड. या सो या देयर इज, या सो यू डू लाइक दिस, मल्टीप्लाई एंड देन यू राइट exclamation line. How did you write that? Exclamation mark. No dear, yeah, you basically assumed right, but yeah, the answer is not perfectly correct. There are mistakes. One thing is that you don't write this. Okay, you basically use quotes around here. ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरह से यूज नहीं लेते हो सिंबल्स को. जो भी सिंबल्स होते हैं उसके अराउंड जो है आप कोट्स लगाते हो ना, क्योंकि आपको उसको एक स्ट्रिंग बनाकर यूज में लेना होता है. ठीक, कि जो भी सिंबल्स हैं आप इनको एक स्ट्रिंग बनाकर यूज में लोगे ना, इस तरह से, है ना. पहले भी हमने एग्जांपल्स देखे थे तो वहां पर हमने ऐसे कोट्स लगाया था. पहली चीज तो ये है. ठीक है, एंड अनदर थिंग इज दिस, इफ यू डू लाइक दिस, बेसिकली हियर विल बी अ स्पेस. यहां पर क्या होगा, एक स्पेस आएगा. ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एक स्पेस होगा ना, यहां पर एक स्पेस आएगा अगर आप ऐसा करोगे. बट इफ यू डू नॉट वांट अ स्पेस, बेसिकली नाउ यू हैव टू यूज अ प्लस साइन. अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए वहां पर तो आपको प्लस यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर मैं प्लस यूज करूंगा तो मेरे स्पेस यहां पर नहीं आएगा. ठीक है, अगर स्पेस मुझे चाहिए then I can pass them as a separate arguments. ठीक है, if I need a space then I can pass them as a separate arguments, but if I do not need space then I have to use a plus operator here. Okay, yeah, that's it. Okay, cool. Now let us see, suppose, yeah, now suppose, yeah, so let us see one more question. Like suppose instead of any name I write enter any number. Okay, I enter any number and here I use enter any number, and suppose I enter a number which is 1 2 3 and 4. I enter a number that is 1 2 3 4. So, and if I try to do this, okay, instead of name, basically you can use the same variable name. Okay, but yeah, definitely we should use a meaningful variable names. Okay, otherwise it will do the same work. But okay, I can change the name because I am now taking, so I can change the name, otherwise it doesn't matter. Okay, so here I am using a noun. Yeah, now see, if I want my output like this 1 2 3 and 4, then what should I do? Again the same thing, you just write print ch here.
व्हाई? बिकॉज इट इज द सेम थिंग। जो मैंने शक्ति लिया था उसकी जगह मैंने 1 2 3 4 ले लिया, बिकॉज 1 2 3 4 इज एक्चुअली नॉट अ नंबर हियर, इट इज ए स्ट्रिंग। यहां पर 1 2 3 4 एक्चुअली एक नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है, बिकॉज इनपुट फंक्शन क्या करता है कि यहां पर जब भी रिटर्न करता है तो वो इसके आगे कोट्स लगा देता है। सो बेसिकली नम की जो वैल्यू होगी वो एक स्ट्रिंग होगी, वो एक नंबर नहीं होगा, है ना। नम की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, नम की वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी, वो एक नंबर नहीं होगा, बिकॉज इनपुट फंक्शन ऑलवेज एड्स कोट्स अराउंड ए वैल्यू व्हाट एवर यू हैव एंटर्ड है, जो भी आपने यहाँ एंटर करा है उसके अराउंड्स में जो है कोट्स लगा देता है। तो ये बेसिकली आपका एक नंबर नहीं है अभी भी, है ना, ये एक इंटीजर नहीं है अभी भी ये एक इंटीजर नहीं है, अभी भी जो ये है वो क्या है, अभी भी ये एक आपका स्ट्रिंग ही है, और ये जो है सेम ही चीज करेगा, ठीक है। और अगर अभी भी मैं ये करूं ch मल्टीप्लाइड बाय 2, सपोज आई डू ch मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर अभी भी यही होगा 1 1 2 2 3 3 4 4। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है, अभी भी इसके सराउंड में कोट्स है। कोट्स का मतलब है ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो ये ऐसे ही वर्क करेगी जैसे पहले हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग वर्क कर रही थी, ठीक है। तो ये एक इंटीजर के लिए तब बिहेव करेगा जब मैं यहाँ पर एक int फंक्शन यूज करूँ ना, तो वो थोड़ी अलग चीजें हो जाएगी, इसको थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे कि कैसे हम इसको डील करेंगे, ठीक है। ये आप अभी देख लो। अब देखो, तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट अ स्ट्रिंग, कि आप एक स्ट्रिंग में 4 का कैसे यूज करते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे कैसे कैसे। सो आई कैन समराइज व्हाटएवर वी हैव डन हियर इज दैट बेसिकली नाउ वी कैन टेक एनी स्ट्रिंग, है ना, we can take any string and we can do individual operations, we can do operation any operation on individual elements, है ना। I can take any string and I can perform operation, certain operation on individual elements। पहले क्या था, पहले ये था कि मैं एक स्ट्रिंग लेता था और उस स्ट्रिंग पर ही कोई ऑपरेशन करता था, ठीक है, जो भी मेरे को, जैसे स्ट्रिंग पे कुछ ऐड करना है, स्ट्रिंग में कुछ मल्टीप्लाई करना है। अभी जो है ये 4 के स्टेटमेंट से क्या हो गया कि मैं जो स्ट्रिंग मैंने एंटर करी उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे मैं कोई ऑपरेशन कर सकता हूं। जैसे मैंने ये देखा कि हर कैरेक्टर पे मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 का एक ऑपरेशन लगा दिया ना, हर कैरेक्टर पे ये ऑपरेशन लगा दिया, इस तरह से मतलब इंडिविजुअल जो उसके एलिमेंट्स हैं आप उस पर ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग के केस में ना। Now we see another concept which we have not studied till now. Basically, it is a list. Okay, so let us see what is a list and how we use the list basically, है ना। अब देखो क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर मैंने कुछ नंबर्स हैं मेरे पास और उन पे मेरे को ऐसा करना है, ठीक है। अभी क्या है, बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स है ना, जैसे 1 2 3 4 है, ये क्या है, कैरेक्टर है बेसिकली ना। इस पे अगर मेरे को कोई ऑपरेशन करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, तो मैंने कर लिया ना। लेकिन बेसिकली अगर कुछ नंबर्स हैं, ये क्या है तो दिखने में नंबर है लेकिन ये नंबर नहीं है एक्चुअली, ये अभी भी स्ट्रिंग है क्योंकि सराउंडेड बाय कोट्स है। लेकिन अब एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हो, उस नंबर्स पे मैं ये ऐसे ऑपरेशंस कर सकूं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे ना, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में तो कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हमारे पास है एक नया तरीका होता है, उसके लिए वो होता है हमारा लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देखते हैं, देखो लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो है इस तरह से करते हो ना। अब ये जो है, अभी हम इनपुट कुछ भी नहीं करवाएंगे यूजर से, केवल आउटपुट ही आउटपुट करेंगे। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैंने एक नंबर्स ले लिया ना, NUMS कर दो क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर्स, आई टेक अ वेरिएबल NUMS एंड आई पास नंबर्स लाइक दिस 10 11 और यू कैन राइट 12 और यू कैन राइट 14, ठीक है। इस तरह से आई कैन टेक नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ ना, देखो जब भी मैं इस तरह से लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, है ना, जब भी मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 और यू कैन राइट सिंपली हियर x, ओके, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इट विल अगेन वर्क, है ना, ये अभी भी वर्क करेगा। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज करने चाहिए लेकिन थोड़ा अवॉइड करके देखते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो कि क्या है। तो जैसे मैंने x इक्वल टू 5 लिखा तो मेरे पास क्या होता है, बेसिकली आई क्रिएट ए स्पेस जहां पर मैं 5 रख देता हूं और उस स्पेस को मैं 5 का नाम दे देता हूं, ठीक। या आप ऐसा समझ सकते हो कि मेरे पास एक बैग हो जाता है, अगर मैं x इक्वल टू 5 लिखता हूं तो मैं एक बैग परचेज कर लेता हूं और उस बैग में मैं 5 डाल देता हूं और उस बैग का नाम x रख देता हूं, ठीक है, इस तरह से ना। या आप देखो कि जैसे आपके किचन में बहुत सारे डब्बे रखे हुए होते हैं ना, हर चीज के, दाल रखी है, किसी में अलग अलग तरह की दाल रखी है, किसी में मसाले रखे हैं। तो आपने क्या करा कि कोई डब्बा लिया, उसमें 5 डाल दिया और उस पर x लिख दिया, ऊपर टैग लगा दिया, ठीक है, इस तरह से आप समझो इसको, ठीक है। आप किचन में गए, किचन में आपने 5 डाला,
और उसमें डब्बे पे आपने x लिख दिया, तो आपका इस तरह से वेरिएबल जो है आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करता हूं x इक्वल टू मैंने लिखा 2 4 6, अगर इस तरह से मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूं तो उसमें क्या होता है, सेम ही आपने वही डब्बा लिया, लेकिन उस डब्बे में जो है आपने आपके 3 वैल्यूज डाल दी 2 4 एंड 6। ठीक है, ये 3 वैल्यूज उस डब्बे में डाल दिया आपके, है ना। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैंने वही डब्बा लिया लेकिन आपके उस डब्बे में मैंने 3 वैल्यूज डाल दिए 2 4 6। वही डब्बा है, पहले एक ही वैल्यू डाल रहा था, अब के उसमें 3 वैल्यू डाल दी, या 4 डाल दो 5 डाल दो, कितनी, यहां पर मैं देखो 4 डाल रहा हूं, यहां पर मैं 3 ही डाल रहा हूं, तो अब के मैंने सेम ही डब्बा लिया, उसका नाम रखा x और उसमें डाल दी 3 वैल्यूज, 4 भी डाल सकता हूं 5 भी डाल सकता हूं, कितनी भी डाल सकता हूं ना। तो ये तो इस तरह से बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो लिस्ट, है ना। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम लिस्ट। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, और बात करेंगे इसके बारे में, लिस्ट वगैरह के बारे में, थ्योरी वगैरह बाद में बातें करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, तो x मैंने वही लिया एक डब्बा जिसमें मैंने 3 नंबर्स डाल दिए आपके। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, वापस उसी पर आते हैं। ठीक है, इसको लिखते चला करो ना साथ साथ में कॉपी पेन से ना, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना हो, टाइम वैसे भी हमारे पास शॉर्ट है, डिस्कनेक्ट होने वाले हैं ना, तो फटाफट से देख लो अब। ठीक है, तो ये करते रहा करो, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, अब ये मैंने एक लिस्ट ले ली, बेसिकली एक वेरिएबल लिया जिसमें एक की जगह मैंने 4 नंबर डाल दिए, 5 भी डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, कितने भी डाल दो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 4 वैल्यूज ली, और लेने का तरीका ये होता है। ठीक है, एक वैल्यू कैसे लेते हैं हम, एक वैल्यू तो ऐसे लिखते हैं ना, 2 वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 वैल्यू लेनी है तो ऐसे ही लिखेंगे ना। अब आप चाहे कितनी भी वैल्यू लगाओ, आप इस तरह से लगाते हो ना, ये बेसिकली आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो। ठीक है, आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो और उसमें जो है आप इस तरह से लिखते हो ना, तो ये तरीका होता है लिखने का, ये तरीका फिक्स है, इसी चीज को ध्यान में रखो कि हाँ ये तरीका है एक तरह से ना। तो अगर मेरे को एक वेरिएबल लेना है x और उसमें 4 वैल्यू डालनी है, तो ये एक तरीका होता है। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो लेफ्ट वाला, यहाँ पर राइट वाला यूज करते हो, और उसके बीच में वो सारी वैल्यूज लगा देते हो, बीच में कॉमा लगाते चले जाते हो। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को बोलते हैं हम लिस्ट। बेसिकली हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है ना, वही चीज। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि वही सारे प्रिंट करने हैं। मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए 10 11 12 एंड 14। तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर ch। अब देखो ch ले लो वेरिएबल, आउटपुट तो वही आने वाला है। एंड इफ आई डू लाइक दिस प्रिंट ch, तो जो मेरा आउटपुट है वो यही आ जाएगा, है ना। सो द आउटपुट विल बी 10 11 12 एंड 14, द सेम थिंग इज देयर। But again the thing is this, basically ch and x are not meaningful variable names and I should definitely use meaningful variable names। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं क्या लिखता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। for num in numbers, ये num है, ये नंबर्स है, या फिर आप x कर लो यहाँ पर, या फिर x तो चलो वही लिया है, यहाँ num कर लो और यहाँ x लिख दो। ठीक है, ये मैंने लिया nums। ठीक है, nums ले लिया और यहाँ करा for x, और फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया आपका x। ठीक है, तो nums मैंने लिया nums, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं तो उसके आगे s लगा दिया बस, है ना। तो nums हो गया, ये आपकी लिस्ट होगी, और आपने हर कैरेक्टर, हर जो नंबर है उसको x ले लिया ना। तो होगा क्या, इंटरनली कैसे होगा, इंटरनली ऐसे होगा, पहले आपका x इक्वल टू 10 होगा और फिर आप उसको प्रिंट करोगे ना, प्रिंट x कर दोगे, फिर क्या होगा, फिर आपका x इक्वल टू 11 होगा और फिर आप उसको प्रिंट x कर दोगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये सारा चलता चलेगा, इंटरनली ऐसे होता है। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब सपोज मैं चाहता हूं कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना। तो बेसिकली ये मेरा आउटपुट ना आकर मेरे को आउटपुट ये चाहिए 20 22 और 24 एंड 28। ठीक है, बेसिकली नाउ आई वांट माय आउटपुट लाइक दिस। सो व्हाट शुड आई डू इन दिस केस, बेसिकली जस्ट राइट x मल्टीप्लाइड बाय 2, जस्ट राइट x मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड माय आउटपुट विल बी दिस। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा ना आपके, ये वाला नहीं, ये वाला आउटपुट होगा। ठीक है, 20 22 24 एंड 28। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब नाउ यू कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आपको x मल्टीप्लाई 2 नहीं करना है, आपको x प्लस 2 करना है, आप x प्लस 2 कर दो। आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट प्लस 2 हो जाएगा, 12 13 14 एंड 16। ठीक है, आपका जो आउटपुट है इस तरह। सो यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो अब आप समझ गए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने एक लिस्ट ली, बहुत सारे नंबर लिए एक ही वेरिएबल के अंदर, और हर जो वेरिएबल है बेसिकली हर नंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं ना, हर ऑपरेशन पर, हर नंबर पर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो, अब देखो, अब इसमें ये है कि अब और मेरे को मान लो 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या करूंगा, 1 से 100 तक के ना, वापस इसको लिख दो फॉर x इन नम्स। ठीक है,
1 से 100 तक के नंबर प्रिंट करने ना, मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, 1 से 100 तक के नंबर, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 100। तो क्या करूंगा, ऐसे ही ले लूंगा बस, 1 to 100 ले लो, 1 2 3 4 एंड अप टू 100, ठीक है। ऐसे 100 तक लिख दूंगा पूरा, 1 2 3 4 5, मैंने पूरा नहीं लिखा, आपको पूरा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100 तक पूरे लिख दो, और ऐसा ही करो तो ये आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी 1 to 100, ठीक है। कौन है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगी ना। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत है, इसका सॉल्यूशन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन है कि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट में लिख देंगे हम ना, एक फंक्शन लगाएंगे उससे ही पूरा लिस्ट अपने आप बन जाएगी, ठीक है। कैसे करोगे ना, करके देखो, आप करके देखो, ऐसे करके देखो कैसे करोगे ना, ट्राई करके देखो, आपको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा ना। तो ऐसे तो आप देखो 100 नंबर लिखोगे, अगर मैं कहूं 1000 नंबर प्रिंट करने तो क्या 1000 नंबर लिखोगे, नहीं ना। तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो अगली क्लास में देखते हैं, आप ये ट्राई करो आज, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये ट्राई करना, 100 तक प्रिंट करके देखना ना, आपको लग रहा है ना, फिर आपको लगेगा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अगली क्लास में बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।